Good morning to everybody. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. good morning, Good morning, sir. good morning, good morning, good morning, Good morning, sir. good morning. हो गया विशाल जी, हो गया। एक बार देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग, morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेबल ऊंचा था, अभी टेबल है ही नहीं, बड़ा दिक्कत होता है। टेबल उस रूम में था, यहाँ टेबल नहीं है, किताब रखने में बड़ा दिक्कत हुआ। किताब से पढ़ाना है हमें। प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर बोल रहे हैं मीटिंग कर रहा है। सर हाँ, मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था। अच्छा ठीक है, प्रेजेंटिंग मत करो, ज्वाइन करो। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक, because in social studies book is very important. Without book it is not possible to understand the lesson carefully. So friends, everybody open your book and come to page number, what to say, the page number is 4, the Indian Constitution, that is chapter 1. Friends, open your book, everybody. Without book, it is very difficult to make you understand the things. Because we are not present in the classroom that everybody, I can check that everybody has book. मैं तो क्लासरूम में हूं नहीं कि बुक चेक करेंगे सबके पास बुक है कि नहीं है। तो ये आपको अपने से अपना बुक ही निकालना है। और चलिए फिर आगे बात करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड। तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, 2 मिनट 15 तक। किसी और को ज्वाइन करना होगा तो कर ले सभी लोग। सो देखते हैं और कितने लोग ज्वाइन करते हैं। But friend, remember one thing, class 8, this class is very important because after this you are going to prepare for your board examination. ये class 8 आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि इसके बाद 9-10 मतलब कि आपके जीवन का हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब मतलब कि जितना आपने पढ़ा है अभी तक उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा 9-10 में। तो 8 से शुरू होता है हर एक चीज, 8 से सच्चाई शुरू होती है। So friends, the truth begins from class 8. So you have to pay a lot of attention in class 8 because this is the transition period. ये बदलाव की घड़ी है क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो जो बच्चा अपने आप को इसमें बदल लेगा, अपने आप को तैयार कर लेगा आगे के लिए, वो 100% ही आगे जाके सक्सेस करेगा।
जो अपने आप को कम बदलेगा वो कम सक्सेस करेगा, जो अपने आप को ज्यादा बदलेगा वो ज्यादा सक्सेस करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर योरसेल्फ and try to change yourself as quick as possible. So friends, more 3 minutes is left. After 3 minutes, we are going to start our classes from 11:15. Let's see. Good morning friends, good morning to everybody and a hearty good morning to everybody. दिल से good morning सबको. ज्वाइन करिए और थोड़ा ध्यान दीजिए. Please open your video and set up your audio. अभय सर कहाँ जा रहे हैं? So friends, more 2 minutes is left. So we will start after 2 minutes. Vaibhav Singh, welcome Vaibhav. And where is your friend Chris? He has joined or not? Hello Chris, can you listen me? Can you hear me? Good afternoon Ayush. Good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Have a nice day, sir. Same to you, same to you. MD Ahmad, how are you? Babo, good morning, good morning, Fine, good sir. morning. Thanks. Palak, good morning. Good morning, Sagar, good morning. So friends, take out your book and we are going to move, as you know very well how I teach, we are going to move line by line. Hello Arhan, how are you? So friends, first of all, we will start from the Indian Constitution. Very fine. The blue page in front, that is page number 4, the Indian Constitution. Friends, we all know very well, हम लोग सभी लोग ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। जैसे हमारा परिवार भी चलता है किसी नियम कायदे कानून से। हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सभी लोग हैं और सभी की ड्यूटी क्या क्या है ये बताया गया है कि दादा दादी क्या करेगा, मम्मी पापा क्या करेंगे, आप बच्चों क्या करोगे, आपके अंकल आंटी क्या करेंगे। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कौन क्या करेगा, लेकिन सबको पता है कि क्या करना है। तो जो पता जो चीज है, ये क्या पता है, ये एक परिवार का संविधान है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हमारे परिवार में तो ऐसा ही होता है, तो भाई ऐसा कैसे होता है, ये जो ऐसा होता है यही एक परंपरा है, यही एक परिवार का संविधान है और इसी आधार पे परिवार चलता है। और ये जो परिवार हमारा चलता है, आप समझ ही सकते हैं कि छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा फैमिली है। हमारा फैमिली के बाद हमारा गांव, गांव के बाद हमारा ब्लॉक या फिर पंचायत, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा कमिश्नरी, उसके बाद हमारा स्टेट, उसके बाद हमारा कंट्री। तो इन सबको चलाने के लिए कुछ न कुछ कानून चाहिए। तो ये कैसे चलेंगे? तो इन सब चीजों को अच्छे से चलाने के लिए
हमारे देश के नेताओं ने एक संविधान बनाया। Our leaders who fight for the freedom of struggle, they plan for a constitution and build one constitution which suits the Indians. उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो भारतीयों को सूट करे। भारतीयों को सूट करने का मतलब आप समझ सकते हो, हम भारतीय पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर 300-400 साल गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी हम पे 200 साल राज किया, तो हम गुलाम बन चुके थे। तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोगों को ये लगा कि मेरा देश तो 500 साल गुलाम था, तो अब इनको क्या दिया जाए, कैसा शक्ति दिया जाए कि इनको आजादी महसूस हो। इसके लिए उन लोगों ने ऐसे संविधान का निर्माण किया। They built such a constitution that give their citizens full power to enjoy the वो संविधान ने हमारे देश के लोगों को ऐसी शक्ति दी जिससे हम उन सारी चीजों का आनंद ले सके जिनका हमने पहले नहीं लिया, हम गुलाम थे। तो चलिए बाय बुक चलते हैं। मैंने आपको बताया, बुक को सभी अंडरलाइन, अपना पेन पेंसिल जो भी है उंगली है बुक पे रखेंगे और मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। जैसा कि चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान। In this chapter we are going to begin with a football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर का शुरुआत हम एक फुटबॉल नामक खेल से करते हैं। ये खेल एक ऐसा है कि बहुतों ने इसका नाम भी सुना होगा और बहुतों ने इस गेम को खेला भी होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player feet. जैसा इसका नाम है फुटबॉल, फुट, तो ये खेल ऐसा है कि जिसको हमको पैरों से खेलना है। According to the rules of football, if the ball touches the arm of the player, then this is considered a foul. अगर गेंद किसी प्लेयर के हाथ में टच हो जाए तो ये फाउल हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, फाउल गलती हो जाता है। लेकिन so if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर हम देखें कि प्लेयर जो है वो फुटबॉल को उठा करके हाथों से खेलने लगे तो क्या वो फुटबॉल रह जाएगा? नहीं, वो फुटबॉल नहीं रहेगा, वो तब कोई दूसरा खेल हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. आप देखते हो हॉकी को स्टिक से खेलते हैं, अगर प्लेयर स्टिक और पैर दोनों से खेलने लगे, क्रिकेट बैट से खेलते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट आपको पता ही है। अगर क्रिकेटर विकेट के सामने आके खड़ा हो जाए और रग्बी क्रिकेटर विकेट के सामने आके खड़ा हो जाए और रग्बी तो सर कोई रिप्रेजेंट कर दिया सर। तो अंजलि कौशिक रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ भाई, ज्वाइन करो, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट करो। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज माइक बंद करिए। चलिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ जो आगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट से विकेट सब कुछ रहता है। अगर हम लोग एक डंडे से खेलने लगे तो रग्बी हो जाएगा, तो क्रिकेट रहेगा नहीं। इसी तरह से हर एक खेल का एक अलग अलग नियम कानून है और उसको उसी तरह से खेलेंगे तो वो खेल होगा। नहीं तो अगर हम दूसरा तरीके से खेलने लगे तो खेल की जो आत्मा है वो बदल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। Each of these rules have define the game and help us distinguish one from the another. हर एक खेल का अपना अपना कानून है, उसी कानून के द्वारा उस खेल को हम पहचान सकते हैं। अगर हम हॉकी बैट से खेलने लगे, क्रिकेट हॉकी स्टिक से खेलने लगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक खेल का अपना अपना नियम है, अपना अपना कानून है। As these are fundamental to game, we can also claim the consecutive rules of the game. Consecute मतलब बनाना। तो ये सारे ऐसे कानून हैं जो उस खेल को बनाते हैं। जैसे बॉलर कैसे बॉलिंग करेगा, विकेट कीपर कहाँ खड़ा होगा, फील्डर कहाँ रहेंगे, तो ये सारे खेल को नियम बनाता है और यही नियम जो है खेल को बनाता है। यही नियम खेल का नाम भी बताता है। Like these games, a society has also a consecutive rules that make it what in each and different it from other kind of society. इसी तरह से कानून भी सोसाइटी का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। जैसे हमारा इंडिया का सोसाइटी अलग है, अमेरिका का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, तो सब जगहों का सोसाइटी अलग अलग है। तो हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारे जो नियम कायदे कानून है, उसको फॉलो करके हम अपने यहाँ अपने चीजों को फॉलो अप करते हैं।
In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. जैसे हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहने वाले हैं, तो ऐसा कोई कानून बन जाए जो किसी एक को फायदा करे तो गलत हो जाएगा। तो कानून ऐसा बनना चाहिए जो सबको पसंद हो, सबके लिए अच्छा हो, तो कंसेंसस से बनना चाहिए, राय मशवरा करके। And in modern countries, this consensus is usually available in written form. और जो नए नए देश हैं, उन सारे देश में जो ये रजामंदी है, ये लिखित रूप में है। लिखित मतलब कोई बदल नहीं सकता। जैसे अभी बोलोगे आप मेरे को ये पसंद है, थोड़ी देर बाद बोलेगे वो पसंद है, फिर कुछ देर बाद भी दूसरा पसंद है, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने जो लिख दिया उसको आपको फॉलो अप करना है। A written document in which we find such rules is called a constitution. और जहां पे ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, जिस किताब में या जिस कॉपी में, उस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। संविधान, विधान, विधान का मतलब कानून। तो जो विधान लिखा हुआ है उसी विधान के आधार पे हमारा देश चलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political textbook. देखिए अभी आप क्लास 8 में है, तो यहाँ हमारा बुक बता रहा है कि 6 और 7 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। Have you ever wondered why we need a constitution or being curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आपको मन में ये सवाल आता होगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज, इसको किसने लिखा है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते होंगे। In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. इसको किसने लिखा, क्यों लिखा, और इसके जो मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be focused on different chapters in this book. जो भी संविधान के हमारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स ही देश के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर इनमें किसी एक का जगह कम हो जाए तो फिर वो जो काम है संविधान का वो अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी इसके मुख्य बिंदु हैं उन सब का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? एक देश को संविधान क्यों चाहिए? इसका एक सीधा सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि एक परिवार को संविधान क्यों चाहिए? परिवार मतलब एक देश। हमारा देश भारत भी एक परिवार ही है। हमारा देश भारत भी एक परिवार है, जैसे कि आपका परिवार है। तो आपको परिवार को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून चाहिए ना? वो कायदे कानून क्या है? चलिए इसको हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज बहुत सारे जो देश हैं हमारे इस अर्थ के ऊपर, इन सबके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. हम देख सकते हैं हमारे इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सबके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक कंट्री आप समझ सकते हो, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, रसिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक हैं जैसे इंडिया, ब्रिटेन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो ये सारे कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास अपना संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं चाइना को, चाइना के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से चाइना चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना डेमोक्रेटिक है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। रसिया को भी ले सकते हैं, रसिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन उसका भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बात आपको समझ में आ गई। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उन सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे हमारे काम को पूरा करती है, बहुत सारे काम में हमारे वो आती है। चलिए कुछ को हम देखते हैं क्या क्या संविधान हमारे लिए कर सकता है या फिर हम संविधान के लिए कैसे कैसे उपयोगी हैं। फर्स्टली, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहला काम ये देश का आइडिया को बनाता है कि भारत देश कैसा होगा और भारत में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं उस देश में रह करके।
आप समझ रहे हो ना, हम भारतीय इंडिया में क्यों रहते हैं, हमको क्या चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा क्या है, भारत की सोच क्या है, भारत की समझ क्या है। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, भारत कभी किसी पे पहले आक्रमण नहीं करता, अतिथि देवो भव, और भी बहुत सारी चीजें जो इंडिया का अपना कल्चर है। यही दिखाता है कि इंडिया ऐसा है। और इंडिया में हम क्यों रहते हैं, हमारी इंडिया से अभिलाषा क्या है, अस्पायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, और पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस दैट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, ये बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, कैसा है। आप देख सकते हो समाज हमारा देश का कैसा है, ये हमारा संविधान बताता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree or on the issues. मैंने आपको पहले बताया हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सोच सबका हो वो सब कोई मान ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं कुछ अलग सोचता हूँ, वो कुछ अलग सोचता है, वो कुछ अलग सोचता है, तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो भारत की सोच है वो एक है। भारत की सोच का मतलब ये देश क्या सोचता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। A constitution has some set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of which in which they want the country to be governed. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून है, एक ऐसा मसौदा है जिसके ऊपर देश के सारे नागरिक राजी रहते हैं कि चलो मैं भी इसको मानूंगा, तुम भी उसको मानोगे, और देश के सारे नागरिक इस संविधान को मानेंगे। तो ये प्रूव करता है कि ना आपके मन का चलेगा ना मेरे मन का चलेगा, जो संविधान में लिखा हुआ है वही देश में चलेगा, और उसी के हिसाब से हमारे देश का जो रूल है, शासन है, गवर्नमेंट है, काम करेगी। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. ये जरूरी, this includes only the type of government, और ये संविधान हमको बताता है कि हमारे देश में कैसी सरकार होगी और वो सरकार किस तरह से देश का काम करेगी और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं संविधान से, देश का भविष्य, देश के नागरिकों का भविष्य, ये सारी जो चीजें हैं ये संविधान से जुड़ी हुई हैं। चलिए बगल के पिक्चर में आप देख सकते हैं ये 1934 की घटना जो पूरी तरह से दिखाई जा रही है, कैसे जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रीफ कर रहे हैं। इंडिया का चलेगा का मतलब देश कैसे चलेगा, चलने का मतलब देश में कैसी गवर्नमेंट होगी, देश का रूल रेगुलेशन कैसा होगा। देश कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन जब हमला होगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो ये देश का चलना है। देश कैसा सोचता है, देश की विदेश नीति कैसी है, देश का जो अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेव रहेगा, यही सारी चीजें जो देश को आगे ले जाती हैं। देश ऐसे ही चलता है और देश के नागरिक देश को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट है। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक टू हाउ टू रन द कंट्री। जैसा हम वोट करते हैं, वोट करके गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो गवर्नमेंट हमारी चीजों को आगे करती है। तो ये ये जो फिगर में जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आप जानते ही होंगे। आपको पता ही होगा संविधान को किसने लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, बी आर अम्बेडकर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, राजेंद्र प्रसाद। एक बार हमारे बिहार के एक बहुत बड़े आदमी को भी टेम्पोररी चेयरमैनशिप मिला था जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सारे लोग संविधान बनाने में थे और संविधान बनाने में आपको पता ही है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। बहुत इस पे बहस हुआ था इसको लिखने में। तो ये सारी जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. चलिए अब थोड़ा हम लोग नेपाल के बारे में देखते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अभी आपने न्यूज में देखा ही होगा नेपाल के साथ इंडिया का थोड़ा अनबन हुआ है किसी किसी मैटर के ऊपर। अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ भी रहे होंगे कि नेपाल के साथ इंडिया का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, पॉलिटिकली और फिजिकली। फिजिकली का मतलब जमीन के मामले में और राजनीतिक भी। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल कैसा देश है। हमारे बगल में ही हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा पड़ोसी है, बहुत करीबी पड़ोसी है, और उसका जो बॉर्डर है जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़े होने का मतलब कि जैसे आप एक फ्लैट में रहते हो और पैदल आप दूसरे पड़ोसी के कमरे में चले जाते हो, उसके लिए ना आपको एरोप्लेन चाहिए, ना वाटरशिप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह से नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो हम पैदल चल करके नेपाल में जा सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल कितना करीब है हमारे। तो नेपाल का स्थिति क्या है हम देखते हैं नेपाल के बारे में।
मैं आपको इससे बता रहा हूं, नेपाल में पहले राजशाही था। राजशाही मतलब आप समझ सकते हो, राजशाही का मतलब हो गया डिक्टेटरशिप भी मान सकते हैं इसको, राजा जो चाहेगा जैसा चाहेगा करेगा। वहां पे पहले इंपीरियल रूल था, मतलब राजशाही। चलिए बुक के थ्रू हम लोग बढ़ते हैं, बुक पे आप लोग ध्यान रखेंगे। Until quite recently, Nepal was a monarchy. मोनार्की आप समझते हैं, मोनार्क का मतलब राजा होता है, तो नेपाल में राजशाही थी। अभी कुछ 20 साल पहले तक, 20-25 साल तक पहले तक नेपाल में राजशाही था। The previous constitution of Nepal, which has been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो 1990 में नेपाल में एक संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिखाया गया था कि नेपाल का जो राजा होगा वो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर मतलब आप समझ सकते हो ना, इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? इंडिया में सबसे ऊपर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के नीचे सभी लोग हैं। इसी तरह से नेपाल में था कि राजा सबसे ऊपर है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो राजा ही करेगा। A king movements of Nepal fought for several decades to establish democracy. In 2006, they finally succeed in putting to end to the power of kings. जनता, नेपाल की जनता राजशाही को खत्म करके वहां पे डेमोक्रेसी चाह रही थी, और बहुत स्ट्रगल के बाद 2006 में इन 2006 वहां पे डेमोक्रेसी आई और मोनार्की खत्म हुई। Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब 2006 के बाद नेपाल के नेताओं को, नेपाल के लोगों को एक नया संविधान लिखने का मौका मिला कि वहां पे प्रजातंत्र लागू हो जाए और मोनार्की। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be. जो पहले का संविधान था वो संविधान ये नहीं दिखा पा रहा था कि नेपाल कैसा होना चाहिए, नेपाल को एक डेमोक्रेसी होना चाहिए। पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल को मोनार्की बना रहा था, इसीलिए लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं था। नेपाल टू बी एंड दैट फॉट फॉर इट, वो जैसा नेपाल को देखना चाहते थे उसके लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ा। वो नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखना चाहते थे, वहां से मोनार्की को उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके ऐसा किया। चलिए आगे देखते हैं। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game together. अगर फुटबॉल का मैच हम देखते हैं, अगर फुटबॉल के मैच में अगर गोलकीपर को बोल दिया जाए कि तुम जाओ सेंटर से बॉल को मारो, तो क्या ये फुटबॉल रहेगा? नहीं। गोलकीपर का एक दायरा बना हुआ है, रेक्टेंगल, उसके अंदर ही गोलकीपर को रहना है। अगर गोलकीपर बाहर निकल के मारता है बॉल को, सेंटर में जाके खेलने लगता है, तो खेल का जो नियम कानून है वो बदल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो नेपाल by moving from monarchy to a democratic government needs to change all its constructive rules in order to usher a new society. अब यहाँ आप समझिए इस बात को, नेपाल में पहले मोनार्की था, तो वहां के जो भी लोग थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो मोनार्क की तरह काम कर रहे थे। अब नेपाल को डेमोक्रेसी बनना था, तो अब अपने अंदर चेंज लाना था, नेपाल को पूरी तरह से बदलना था अपने आप को, कायदे कानून नियम जो भी तौर तरीका था सब नेपाल को बदलना पड़ा। This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. यही तरीका है कि इसके अंदर नेपाल के लोग अब नेपाल के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो नेपाल के लोग अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिख ही रहे हैं। नेपाल में कुछ टर्मोइल हो रहा है, इस वजह से नेपाल का कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और भी बहुत सारे लोग हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रधानमंत्री होता था लेकिन सिर्फ नाम का, राजा सबसे ऊपर होता था। The captions alongside celebrates Nepal struggle for democracy. बगल में आप देख सकते हैं जो फिगर दिया हुआ है वो बता रहा है कि नेपाल के लोग कैसे स्ट्रगल करके नेपाल को मोनार्क से डेमोक्रेसी में चेंज करके लाते हैं। The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. अब यहाँ जरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे देश में कैसी सरकार होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे देश में कैसी सरकार होगी। आप देख सकते हैं अमेरिका में भी क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां प्रेसिडेंट है, वहां प्रेसिडेंट है, लेकिन इंडिया, यूके, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। तो ये बताता है कि इंडिया जो डेमोक्रेसी है, ये प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलेगी।
प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये, उसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उसका तरीका होगा प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में कौन सा गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाइना में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रसिया में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे जनता वोट करेगी, वोट करके अपने लोगों को चुनेगी और उसमें से हमारा प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होगा। चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेपाल में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह नियम कानून था कि नेपाल में राज तो मिनिस्टर्स ही करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर कौन होगा? राजा। जैसे इंडिया में मिनिस्टर्स लोग काम करते हैं और सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं था। नेपाल में सबसे ऊपर मतलब सबसे पावरफुल आदमी राजा होगा, उसके लोग काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं राजा जो चाहेगा जैसा चाहे करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies. हम देख सकते हैं संविधान एक ऐसा लिखा हुआ रूल्स है जिसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे देश को चलना है। जैसे नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राजा जो बोल दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स कुछ भी करते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के आधार पे उनको शासन करना है। अपने मन मर्जी का आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि कैसे देश के ऊपर रूल होगा और कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, कैसे फैसले लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी अचानक अभी आप देख रहे हो चाइना के साथ इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक बोल देंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अभी आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी मीटिंग कर रहे हैं जनरल्स के साथ। अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर जनरल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जनरल्स अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि भाई सारे चीज लिए जाएंगे, लेकिन सबके राय से फैसले होंगे, सबके राय से। अगर इंडिया को चाइना के ऊपर अटैक करना है तो इंडिया अपना जो उसका अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देश के सारे लीडर्स सबको एक जगह ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से करेंगे। तो डिसीजन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अचानक कोई फैसला कोई नहीं ले सकता। आप देखते हैं आपके घर में क्या आपके दादाजी बोलेंगे तुम जाओ घर से बाहर, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा करना होगा तो भाई मम्मी से पापा से घर के जो भी बड़े लोग हैं उनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं तुम बाहर जाओ। तो ये एक तरीका है कुछ भी फैसला लेने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि कैसे आपको फैसला लेना है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मन का करना है तो फिर आप देश में नहीं रह सकते। चलिए आगे देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। ये आपने आगे भी पढ़ा होगा। हम वोटिंग करके अपने नेताओं को चुनते हैं और वो नेता हमारे बदले हमारा फैसला लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसे देख सकते हो, आप छपरा में रहते हो, छपरा का एमपी कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी। तो हमने राजीव प्रताप रूढ़ी को चुन लिया है। अब राजीव प्रताप रूढ़ी ना हमारी बात को रखेंगे संसद में, पार्लियामेंट में, कि हम जाएंगे। हम तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में समझो 5 लाख लोग है, क्या 5 लाख लोग जाके कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे? नहीं। हम 5 लाख लोगों का एक आदमी राजीव प्रताप रूढ़ी जाकर के वहां बैठेगा और हमारी बातों को रखेगा और उसके हिसाब से हमारे ऊपर कानून बनेगा और हमारे ऊपर रूल होगा। आप देख सकते हैं अभी कोरोना वायरस इंडिया में आया हुआ है, तो भाई सारे लोगों ने मिल करके कहा लॉकडाउन करना है। तो क्या आपने कहा, हमने कहा? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे बदले हमारे नेताओं ने कहा तो हम उसको पालन कर रहे हैं। इसी तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. हम देख सकते हैं कि जितने भी नेता लोग हैं वो अपने मन का भी कर सकते हैं। भाई तो चुन लिए गए 5 साल के लिए, तो क्या नेता अपने मन का कर सकता है? नहीं। संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपने मन का नहीं कर सकते। अगर आप आपके मन का करेंगे तो उसके लिए कोर्ट्स बैठे हुए हैं,
उसके लिए बहुत सारे पैनल बने हुए हैं, पार्लियामेंट है। आपके मन का आपको नहीं करने दिया जाएगा, जो संविधान में होगा वही आप करेंगे। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. अगर कोई नेता कोई अपनी गलती करता है तो उसका बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतने को मिलता है। जैसे कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं क्या हो सकता है। अगर टीचर ने बोल दिया क्लास के मॉनिटर को, भाई आप क्लास को देखिए, तो मॉनिटर ही बात करने लगे, तो फिर क्या क्लास अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा। तो मॉनिटर को जो बोला जाए वो मॉनिटर को करना चाहिए। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by political leaders. हमारे डेमोक्रेटिक समाज में, प्रजातांत्रिक समाज में ऐसे कानून बने हुए हैं कि जो लीडर चाहे अपने मन का करना तो वो नहीं कर सकता। उसके लिए संविधान में कानून बने हुए हैं। In the case of Indian Constitution, about which you will read more in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. हमारे इंडियन संविधान में बहुत सारे ऐसे कायदे कानून बने हुए हैं कि जो नेता चाहे अपने मन का नहीं कर सकता, और क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इसके लिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के की पॉइंट्स है वो आगे हमारे दिए हुए हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from class 7 book? आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था कि कैसे स्कूल का हेडमास्टर उसको पूरे स्कूल को, ग्राउंड को, उसके बाद खिड़की को, डोर्स को झाड़ू लगाने के लिए बोलता है और वो नन्हा बच्चा दिन भर झाड़ू लगाते रहता है और ये चीज 2-3 दिन तक चलते रहती है। ये घटना तो आपको याद होगी। In this chapter we will talk about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. इसमें हम भेदभाव के बारे में बात करेंगे कि कैसा वो भेदभाव ओम प्रकाश के साथ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। We will read about how the Indian Constitution guaranteed the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, sex, gender, place of birth. हमारा संविधान ये हमको गारंटी देता है कि हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई भेदभाव करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है और रूल्स बने हुए हैं कि उसको पेनल्टी या फिर उसको सजा हो सकती है। देश का कोई भी नागरिक से आप उसके जन्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी मतलब एकता, समानता का अधिकार। तो हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को या फिर सबको ही समानता का अधिकार देता है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश जो है, देश में कोई भी हो, दलित हो, सवर्ण हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम सभी इक्वल हैं, हम सभी बराबर हैं। हमारे देश में विभिन्नता के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए अगले पेज में हम चलते हैं। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure a dominant group does not use its power other less powerful or other groups. हम देख सकते हैं संविधान में जो लोग मेजोरिटी में है वो लोग माइनॉरिटी को तंग करना ना शुरू कर दें। डोमिनेंट जिनका आधिपत्य है, जैसे आप समझ सकते हैं कि देश में जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं वो जो कमजोर है उसके ऊपर जुल्म करना ना शुरू कर दें। The story below dominates one such situation in the classroom. यहाँ एक कहानी दिया हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे और आप समझ सकते हैं कि कैसे किसी कमजोर के साथ, किसी गरीब के साथ आप अपने हनक, अपने शक्ति को नहीं दिखा सकते। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too. ये जो क्लासरूम में हुआ है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में भी होते रहती हैं कि जो लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं, उनके अंदर बाहुबल है, वो कमजोर को, गरीब को, दलित को, दबे कुचलों को दबाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान पूरा इसको कंडेम करता है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कानूनन सजा भी हो सकती है। Where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. हम देख सकते हैं मेजोरिटी, माइनॉरिटी। मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो जो मेजोरिटी के लोग चाहेंगे क्या देश में वैसा ही होगा? माइनॉरिटीज लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको क्या नहीं देखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश के हर एक नागरिक के ऊपर संविधान के द्वारा
ध्यान दिया जाएगा। As the above story illustrates, every society is prone to tyranny of the majority. क्रूरता, जो बहुमत में लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो हमेशा कमजोर लोगों के ऊपर, कम संख्या वाले लोगों के ऊपर जुल्म करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिटलर के बारे में, हिटलर ने कैसे यहूदियों को मार दिया, ज्यूज को, बहुत सारे ज्यूज को मार दिया, क्योंकि ज्यूज कमजोर थे। तो इस तरह से उन लोगों ने ज्यूज को मार दिया। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. संविधान में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो चीज मेजोरिटी वाले को मिलती है, वही सारी सुख सुविधाएं माइनॉरिटी वालों को भी मुहैया कराई जाएगी। Any reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. संविधान इसीलिए है कि कोई भी जो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म जाति न कर सके, और ये संविधान इसको देखता है। और संविधान की आंखें, कहने का मतलब जो कानून है, जुडिशियरी, इस चीज के ऊपर बहुत ही सख्ती से ध्यान देती है। अभी आपने देखा ही होगा, न्यूज में आ रहा था कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रूल बनाया, सभी को आदेश दिया कि भाई जो मजदूर है उनके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। This can refer to community dominating, another is that inter-community domination. जैसे देख सकते हैं, एक जाति जो बहुत ही मजबूत है, दूसरी जाति के ऊपर अपना धौंस जमाती है, ये नहीं होना चाहिए। और members of one community dominating others within the same community. जैसे एक धर्म के लोग दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाते हैं। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, आप एक दूसरे के अंदर ही अंदर आप एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखा सकते। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं, आप अगड़े हैं, आप पिछड़े हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर भी आप अगड़े हैं, आप पिछड़े हैं। तो अगड़े वाले लोग पिछड़े को वाले के ऊपर धौंस जमाते हैं, तो ये चीज देश में नहीं होगा। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. तीसरा कारण है, हमें अपने आप से संविधान हमको बचाता है। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about any issue that might go against our larger interests, and the Constitution helps us guard against this. हमें हमसे ही हमारा संविधान बचाता है। ये देख करके थोड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन ये चीज है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। Look at the story below to understand this better. यहाँ एक कहानी दी हुई है, जरा इसको आप लोग पढ़ेंगे। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions we might take that could have an adverse effect on larger principles than the country believes in. हम देख सकते हैं, अगर हम कोई फैसला लेते हैं, वो फैसला देश के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। जैसे हम अपने घर में भी कुछ डिसीजन लेते हैं, वो घर वालों को परेशान करना शुरू करता है। तो इस तरह से देश को भी परेशानी होने लगता है। For example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become a acrimonious, that we need a strong dictator to set this right. हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी में ये जो नेता लोग हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, इससे लोग अपने आप को इरिटेट करना समझने लगते हैं। उनको लगता है कि देश के नेता लोग फैसले लेते ही नहीं है, तो उनको लगता है कि देश में एक डिक्टेटर होना चाहिए जो तुरंत फैसला ले। तो आप देख सकते हैं तुरंत फैसले लेने के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। जैसे अभी आप देखो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, ये तीनों तरफ से बॉर्डर से ये लोग हमेशा उकसाते रहते हैं। तो क्या हमें उनके ऊपर अचानक हमला कर देना चाहिए? क्या हमला करेंगे तो क्या फायदा होगा हमको? नहीं। तो इस वजह से हमें सोच समझ करके कोई भी फैसला, कोई भी कदम उठाना चाहिए। Swept by this away emotion, they may not realize that the long-run dictatorial rule goes against all these interests. लंबे सफर में, मतलब देश का जीवन बहुत बड़ा होता है, तो देश के जीवन में कोई भी उल-जुलूल फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप कोई भी गलत फैसला लेते हैं तो देश के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। आपने देखा होगा चोर और पुलिस का खेल, चोर दौड़ता है, पुलिस दौड़ाती है। तो ये मत समझ लिए कि चोर ही थकता है, पुलिस भी थकता है। चोर अगर मोटरसाइकिल से भाग रहा है तो उसका पेट्रोल भी जलता है, और पुलिस उसके पीछे पीछे जाती है तो इसका भी पेट्रोल जलता है। तो इसका मतलब नुकसान दोनों को ही है। तो अगर आप किसी के ऊपर हमला करेंगे तो वो भी बम आपके ऊपर गिराएगा, तो आपका भी बम बेकार जाएगा, उसका भी बेकार जाएगा, और लास्ट में क्या मिलेगा? जीरो। आपका पैसा खर्च, मेरा पैसा खर्च, दोनों का पैसा खर्च, और हम लोग फिर शांत बैठ जाएंगे। तो इसी तरह से कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। A good constitution does not allow
दिस aims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो एक अच्छा संविधान है वो देश का जो तौर तरीका है उसको जल्दी बदलने का नहीं कहता, वो कहता है वेट एंड वॉच, देखिए समझिए चीज को और धीरे से समझिए। It does not allow for any easy overthrow provisions that guarantee right to citizens and protect their freedom। हमारा जो संविधान है हमारे लोगों को जो चीज जो राइट्स दिया हुआ है उसको क्या तुरंत हम फेंक सकते हैं? कोई सरकार है और बोले कि नहीं आप सबको घर में रहना है, आप सबको कमाना नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको खत्म नहीं किया जा सकता। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies। हम देख सकते हैं जो प्रजातांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारा डिग्निटी, हमारे हर एक चीज को प्रोटेक्ट करता है और हर एक तरीके से। आगे देखते हैं। Now let us try to understand the way in which the above points get translated into certain ideas and rules by studying some key features of the Indian Constitution। हमारा जो संविधान है उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। इन बिंदुओं को समझने के लिए हमको ये जो पीछे हमने पढ़ा है इसको थोड़ा समझना होगा। समझना मतलब कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे घर पे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं जो भी इसमें आइडिया दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वलिटी हो या फिर अपने आप को बचाना हो, ये सारी चीजें हमारे संविधान में दी हुई हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। नहीं बस सबको बता दिए। सो फ्रेंड्स, हेलो, Yes, sir. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉइंट्स। हमारे संविधान में कुछ ऐसे बिंदु दिए हुए हैं जो संविधान की चाबी है। चाबी आप समझ सकते हैं ना? चाबी आप समझते हो ना? कोई भी ताले को खोल सकती है जो जिसकी चाबी होगी। उसी तरह हमारा संविधान जो है उसके लिए भी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो संविधान की चाबी है। इन सबको अगर हम जान जाएं कि संविधान क्या है, कैसे है, क्या करता है, क्यों करता है, तो फिर हमको हमारे देश में जो हमको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, उन सब राइट्स को हम जान जाएंगे। एकदम इजीली हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been in the struggle for independence from British for rule for several decades। हम देख सकते हैं 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में हमारा देश तो अंग्रेजों से गुलाम था। तो हमारे देश के जो नेता थे, जो लोग थे, उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया था कि कैसे देश को हम आजाद कराएं, कैसे देश को हम आजाद कराएं जो हमारा देश अंग्रेजों के शासन में डिकेड्स, सदियों तक गुलाम था। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time in imagining and planning what a free India would be like। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, स्ट्रगल में, उन लोगों ने बहुत सोचा, बहुत समझा। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि कैसे हमारा देश होना चाहिए इस अंग्रेजों की गुलामी के बाद से। Under the British rule, they had been forced to obey rules that had been very little role in making। हम देख सकते हैं अंग्रेज ऐसे कानून से देश में शासन करते थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं थी सर। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally। हम देख सकते हैं जो अंग्रेजों का शासन देश पे था वो अधिकारियों का शासन था। अधिकारी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो अधिकारी थे भारत पे शासन कर रहे थे। वहां के नेता जो इंग्लिश नेता थे वो लोग भारत पे रूल नहीं करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे रूल करती थी और उसके जो अधिकारी थे वो भारत पे रूल करते थे। तो उन्हें क्या पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जो हमारे इंडियन लोग थे उन लोगों ने ये सोचा कि हमारा देश जो आजाद होगा उसके बाद उसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए और वो सारी चीजें जो हमको नहीं मिली है अंग्रेजों के शासन काल में वो मिलनी चाहिए, जिसमें से भेदभाव, समानता, एकता, जो हमारी राइट थी। अंग्रेजों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने ऐसी कल्पना की कि जो चीज हमें अंग्रेजों ने नहीं दी वो चीजें हमें हमारे स्वतंत्र भारत में
मिलनी चाहिए, जिससे हम आत्मसम्मान से अपना जीवन बसर कर सकें अपने स्वतंत्र भारत में। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. इन सब के बाद दिल में ये ख्याल आने लगा कि हमारा देश जो है वो तो डेमोक्रेटिक बनेगा, लेकिन कैसा डेमोक्रेटिक बनेगा, इसके तौर तरीके कैसे होंगे। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जो स्ट्रगल में थे, वो सारे लोग इस चीज के ऊपर कल्पना करने लगे कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा और वो कैसे काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संविधान कैसे काम करेगा। This was done not by one person, by a group of 300 people who became members of the Constituent Assembly. मैंने आपको बताया था, एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अंदर 300 लोग थे, एक लोग नहीं, 300 लोग थे। और ये लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन मेहनत करने के बाद 300 लोगों ने एक संविधान को ड्राफ्ट किया। उन लोगों ने उस संविधान को तैयार किया। In 1946, who met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. ये जो संविधान सभा के लोग थे, ये अगले 3 सालों तक लगातार मिलते रहे और राय मशवरा करते रहे कि कैसे हमारे देश का संविधान बनेगा, ये कैसे काम करेगा, इसके क्या क्या तौर तरीके होंगे। So friends, this is the time to wrap up now, and my class is again after 1 hour. So friends, I would like that you read page number 11, 12, miss till last. आप अगले 1 घंटे में बाय। फिर हम लोग का भी 2 क्लास और है। आप लोग इसको पढ़ लें एक बार, जो आगे तक का जो दिया हुआ है। बाय बाय फ्रेंड्स। ओके सर। ओके बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। अली मोहम्मद कौन है? अली मोहम्मद तुम देखो। बाय कस्तूब। त्रिवेदी है। बाय यार बाय। बाय कस्तूब। आगे को काम नहीं कर सकते। किरण भाई 3 क्या बोल रहे हैं? 8 किरण देवी अभी 12 से 1 एमडी कौन है भाई? किरण सिंह। गौरव। माउस हुआ है। चूहा। मंगड़ू। त्रिवेदी जी। अपने आप को चूहा क्यों कह रहा है? सबसे बड़ा है इंडिया का लैंडेड बाउंड्री, इसके साथ सबसे बड़ा लैंडेड बाउंड्री इस कंट्री के साथ। हाँ, जमीनी सीमा इसके साथ सबसे बड़ा पड़ोसी देशों की जमीन तो पड़ोसी देश ना होगा। चाइना है शायद नहीं, बांग्लादेश शायद गलत चाइना है सर। बाय बाय। चारों तरफ से इंडिया है, बांग्लादेश चारों तरफ से किलोमीटर बोल रहे हैं। बाय फ्रेंड, माय दोस्तों। किलोमीटर में पूछ रहे हैं अगर लंबाई चाइना तो अधिक कवर करता है, सबसे बड़ा सीमा। टिकटॉक चलाओ, चलो टिकटॉक चलाओ, सब आप छोड़ो, लेफ्ट करो, टिकटॉक चलाओ। बाय बच्चों, बाय बच्चों, पढ़ाई। नीरज राम कौन है भाई? नमिता देवी, ब्रजेश कुमार, आसिफ रिजवान। नीरज राम हम है। राहुल श्राफ। अच्छा भाई, प्राची है। प्राची कैमरा पे आ। नहीं आएंगे जी। अरे आ जाओ। नहीं जी, जा रहे हैं हम कैमरा पे। किरण सिंह कौन है? हेलो आसिफ रिजवान, हट गया।
कौन बचा? पवन सिंह कौन बची है? किरण सिंह बची है, किरण सिंह। सोनू सर। 4 गो आदमी बचे हैं लो, 8 आदमी। कस्तूर क्या हाल है? ठीक ही है। पढ़ो। मैथ का क्लास शुरू होगा अब। सच में सर सर? तो क्या कहना चाहते हैं सर? सर हाय सर। कैसे हो? अपना आईडी से अपना फेस दिखाएं। सर कैसे है? सर कौन सा आईडी आपका है सर? ठीक होंगे सर। लक्ष्मी सिंह। अच्छा, लक्ष्मी सिंह सर है। हाँ। तो हाय हाय। पवन सिंह कौन है? रोहित। कौन सिंह है? तुम कौन है? नाम बताओ। रोहित। चलो टाइम पास मत करो, सब निकलो, जाओ पढ़ाई करो। ओके बाय बाय बाय। बाय सर। सर सर अभी काची पढ़ाई कर रहे हैं सर? सुबह से लेके अभी तक पढ़िए रहे हैं सर। पढ़ाई से भी तो छुट्टी रहना चाहिए। अच्छा, चलो एंजॉय करो सर। सर आप कृष्ण चंद के घर पे सर आप भी मैथ पढ़ाइए हम लोग को। या सर हम ही लोग पढ़ा रहे पढ़ेंगे। कौन पढ़ा रहे हैं? अभय सर। सर ट्यूशन मिथिलेश सर पढ़ाते हैं। सर मिथिलेश सर। यस सर, मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं। हाँ, मिथिलेश सर पढ़ाते हैं। ठीक है तो पढ़ो। सर आप पढ़ाइएगा तो मजा आएगा सर। लॉकडाउन में आपसे पढ़ने में अच्छा लगेगा। मिथिलेश सर को अच्छा नहीं लगता है। मजा नहीं आता है सर। मस्का उनको मार रहा म्यूट कर देता है सर। सब ये रिकॉर्ड होता है। जा सोनू सर भाग ना छोड़ के हम लोग को। सोनू सर छोड़ के भाग गए कहाँ तो। केवल 4 आदमी। ब्रजेश कुमार आ रहा है, जा रहा है। ब्रजेश कुमार आ रहा है, जा रहा है। हटो सब अब। तो तुम क्या कर रहा है? तुम जाओ। तुम जाओ पहले, एक और क्लास है ना। किरण तो 15 मिनट लेंगे, कहेंगे कि अभी रुको, सबको जुड़ जाने दो। तुम्हारी तरह है। किरण केला खाएगा। तुम्हारी तरह है। किरण केला खाएगा। किरण सस्ता बेचारा है। यानी जबान संभाल के बोलो ना। क्या हुआ? एप्पल खाओ, तुम केला कौन है? तनी तंदुरुस्त दिखाओ ना, तुम बनो। अपना चेहरा दिखाओ ना तनी। तुम्हारा गलती है ना। चार आदमी बचा। हटो सब, हटो। लॉग आउट हो। तुम वो कौन है? क्या तुम गुप्त बात करने वाला है सब? क्या तुम कस्तू? हाँ तो तुमको क्या हो रहा है? हाँ, सबको लॉग आउट करवा। कौन बात तुमको कर क्या हो जाएगा? रहा है? बात करेगा तो आओ। यानी हम भी सुन लेंगे। लॉग आउट हो कस्तूब। पहले मत हो कस्तू भी किसी और को ज्वाइन करने वाला है।
बॉयज में गर्ल्स कौन है जी? एकदम बाल बन गए एकदम। अब तो एकदम जितेंद्र लग रहे हो बाल बना के। ठीक है। चिप्पू राम। राहुल सराफ कौन है? हाँ मैं अर्पिता। राहुल सर और? मालूम नहीं। राहुल सरफ है, राहुल सरफ। हम बोला पपीता। घड़ी सरफ। थोड़ा ज्यादा ए, मत हम- बोलना। पपीता। घड़ी सरफ सुने थे, अभी राहुल सरफ पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा जो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे यार लॉग आउट ठोको ना, हम जा रहे हैं। ठीक है, बाय। ठीक है जाओ जल्दी जाओ। हेलो।